Okay, so we'll proceed with salts. We have already seen acids and bases. So now we'll go with salts. Now, a salt comprises of a cation and an anion. Let's analyze a particular salt. If KCl is a salt, then the cation is K plus and the anion is Cl minus. Always remember that the cation of a particular salt comes from base and the anion of the salt comes from an acid. So this is one very important piece of information which you will require ahead. The cation of a salt comes from base and the anion of the salt comes from an acid. So if I talk about KCl as a salt, then the cation is K plus and the anion is Cl minus. And here, K plus will come from base, Cl minus will come from acid. So K plus is coming from which base? It is coming from KOH. Cl minus is coming from which acid? It is coming from HCl. So this is how we need to identify the parent acid and the parent base for a particular salt. Let's look at another example. If I say CH3COONA, again this is a salt. The cation of the salt is Na plus and the anion of the salt is CH3COO minus. Cation of a salt comes from base. So this is coming from which base? It is coming from NaOH. This anion is coming from an acid. It is coming from which acid? It is coming from CH3COOH. So we have identified the parent acid and the parent base for a particular salt. All right. Another one. If I talk about NH4 twice SO4. If this is my salt, then the cation of this salt is NH4 plus, the anion of the salt is SO4 2 minus. Okay. So now tell me, the cation is coming from which base? Yes, from which base is this cation coming? NH4 NH4OH, right? So it is coming from NH4OH. So this is the base. Okay, from which acid is this anion coming? H2SO4. Yes. तो ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा पहले सॉल्ट को देख के कि कहाँ कौन सा पार्ट उसका ये है, एसिड कौन सा है और उसका बेस कौन सा है. किसी भी सॉल्ट को देख के पहले cation और anion को हम लोग सेपरेट कर देंगे एंड देन वी कैन प्रेडिक्ट. ओके, वन लास्ट वन एंड देन वी कैन गो अहेड बिकॉज़ इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे. इफ आई टॉक अबाउट MgNO3 twice magnesium nitrate, the cation will be magnesium, the anion will be nitrate, Na3 minus is called nitrate. So tell me, from which base is the cation coming? Yes, from which base is the cation coming? MgOH whole twice. Yeah, so MgOH whole twice. This is the base from which this is coming.
The acid from which this is coming is ये सब HNO3. आगे नहीं बढ़ पाओगे. Okay. So the acid from which this is coming is HNO. Fine. ये पहली चीज है जो पता होना चाहिए. Now we can go ahead. Now an ion of a salt may react with water to establish an equilibrium. Salt में केटाइन एनायन दोनों होते हैं. ऐसा हो सकता है कि उस केटाइन ने या फिर उस एनायन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया है. उसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट. So an ion of a salt may react with water to establish an equilibrium. The phenomenon of reaction of a particular ion or both ions of a salt with water is called hydrolysis of salt or salt hydrolysis. तो इसीलिए सॉल्ट के आयंस को पहचानना पड़ेगा. सॉल्ट का केटाइन कौन है, सॉल्ट का एनायन कौन है, वो सबसे पहले पहचानना पड़ेगा. एंड देन वी विल सी कि वो हाइड्रोलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है then which ion is undergoing hydrolysis? It can be the cation of the salt which is undergoing hydrolysis, or it could be the anion of the salt which is undergoing hydrolysis. Hydrolysis is simply reaction with H2O. So if an ion reacts with H2O, we will say that the ion is undergoing hydrolysis. तो हम लोग अभी वही देखेंगे. सॉल्ट आते ही हमें चेक करना है केटाइन कौन है, एनायन कौन है, हाइड्रोलाइसिस होगा क्या, अगर होगा तो किस पार्ट का होगा, केटाइन का होगा या एनायन का होगा. These are the questions that we need to immediately answer in our mind when we see a salt. Hydrolysis of a salt can be considered to be the reverse process of neutralization. अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाऊं. अगर मैं ये दिखाऊं प्रोसेस NaOH plus HNO3 is giving me NaNO3 plus H2O. NaOH is a base, HNO3 is an acid. Base and acid are reacting together to form salt and water, and this process is called a neutralization reaction. Likewise, I can give another example. Now look at this example. CH3COOH plus KOH giving me CH3COOK plus H2O. So again here I have the acid as CH3COOH, the base is KOH, the salt is CH3COOK, and water is formed, which means this is also an example of a neutralization reaction. An acid and a base are reacting together to form salt and water, and hence this process is called a neutralization reaction. अब इसी रिएक्शन को लिखने का और एक तरीका है. अगर मैं आयंस के फॉर्म में लिखूं तो चेक करो कैसे लिखते हैं. This I had taught in class once by doing thermodynamics. I'm repeating that now. जो कंपोनेंट वीक है, जैसे यहाँ पे एसिड वीक है, और ऑलरेडी मैंने आपको लिस्ट ऑफ वीक एसिड्स और लिस्ट ऑफ वीक बेसिस दे के रखा है. तो अगर आप चेक करोगे उसमें आपको दिखेगा कि CH3COH is a weak acid. जो वीक कंपोनेंट है उसको एज इट इज रखो, उसको कुछ मत डिस्टर्ब करो, जस्ट कीप इट एज इट इज. बट व्हाटएवर इज अ स्ट्रांग कंपोनेंट उसको आप आयंस में स्प्लिट कर दोगे पूरी तरह से. KOH is a strong base, so we will split that completely. If we split it completely, we will get K plus and OH minus. सॉल्ट को भी हमेशा कंप्लीटली स्प्लिट करना चाहिए. तो CH3CO minus plus K plus H2O. मतलब इसी रिएक्शन को मैंने मॉडिफाई करके लिखा है. कैसे मॉडिफाई किया है? जो भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है उसको आयंस में स्प्लिट कर देना है, और जो भी सॉल्ट है उसको भी आयंस में स्प्लिट कर देना है. दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द सेम रिएक्शन. अब दोनों तरफ पोटेशियम है, उसको मैं काट दूंगा. K plus is common on both sides. मतलब क्या बचा रहा? अब हो गया CH3COOH plus OH minus
गिविंग मी CH3COO minus plus H2O, यानी K plus तो हटा दिया, चलो हटा देता हूँ यहाँ से. So this is what you're left with now. So the same reaction has been transformed to a different format. So this is also neutralization reaction. This is also neutralization reaction. Okay. अब देखो मैं इसका उल्टा अगर लिखूं, if I reverse this reaction, तो इसका रिवर्स क्या होगा? ये हो जाएगा इसका रिवर्स CH3CO minus plus H2O giving CH3COOH plus OH minus. इसी का रिवर्स लिखा है मैंने. तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. वाई? अब देखो आपका जो रिएक्शन है वो H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है. Who is reacting with H2O? This component, that is CH3COO minus, is reacting with H2O. So I can say that it is an example of hydrolysis reaction wherein the negative ion, which is the anion, the anion is reacting with water. CH3COO minus is an anion because it's negatively charged. So I can say that this anion is reacting with water, and hence this particular reaction will be called anionic hydrolysis. अगर anion पानी के साथ react कर रहा है तो उसको बोलेंगे anionic hydrolysis. So anionic hydrolysis is a reaction where an anion, that means a negatively charged ion, reacts with water. तो अगर आप चेक करोगे ध्यान से तो ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के रिवर्स हैं. यानी ये हो गया पॉइंट नंबर 3 को मैंने जस्टिफाई किया. हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट कैन बी कंसीडर्ड टू बी द रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा यानी रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. ओके. अब एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, अब होता क्या है हाइड्रोलिसिस से? एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस the solution could be acidic, the solution could turn basic, or the solution could remain almost neutral. Hydrolysis की वजह से solution may be acidic, solution may be basic, or the solution may be almost neutral. मतलब हाइड्रोलिसिस के इफेक्ट से, हाइड्रोलिसिस की वजह से हम लोग solution acidic मिल सकते हैं, मतलब हमको ये ऑब्टेन हो सकता है एसिडिक सॉल्यूशन, हमें ऑब्टेन हो सकता है बेसिक सॉल्यूशन, या हमें ऑब्टेन हो सकता है ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन. दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग हाइड्रोलिसिस, बिकॉज़ हाइड्रोलिसिस के इंपैक्ट से सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक बन सकता है. ओके. सो ये हो गया हाइड्रोलिसिस का बैकग्राउंड. मैं आपको और एक हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल दे रहा हूं. ये वाला तो हो गया एक एग्जांपल. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस. Another example of hydrolysis. Now, if I write this, then Cn minus plus H2O giving HCN plus OH minus. Again, this is an example of anionic hydrolysis. Why anionic hydrolysis? Anionic hydrolysis because Cn minus is an anion, and hence it's called anionic hydrolysis. So, ये भी ऊपर का रिएक्शन एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, नीचे वाला रिएक्शन भी एनायनिक हाइड्रोलिसिस है. आप क्लियरली देख सकते हैं कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस के बाद OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है. OH माइनस प्रोड्यूस होना मतलब रिएक्शन बेसिक की ओर जा रहा है. आई मीन द सॉल्यूशन इज टर्निंग बेसिक बिकॉज़ OH माइनस बढ़ रहा है ना, बन रहा है. OH माइनस के बनने से सॉल्यूशन बेसिक ज्यादा हो जाता है. So anionic hydrolysis leads to basic solution. अगर मैं आपको कोई अभी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस दिखाऊं तो देखते हैं क्या होता है. कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब कोई कैटायन हाइड्रोलिसिस शो करेगा. देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले कैटायन का हाइड्रोलिसिस करूं, दैट इज NH4+. NH4+ का अगर मैं हाइड्रोलिसिस दिखाऊं तो रिएक्शन विद वाटर दिखाना पड़ेगा. तो क्या होगा? NH4OH plus H+. हो गया hydrolysis reaction. You can clearly see that
This is a cationic hydrolysis because the cation has undergone water reaction with water, and as a result of cationic hydrolysis, you can see that H plus ions are being formed. Hence, I can say, as a result of cationic hydrolysis, the solution is turning acidic in nature due to production of H plus ions. अगर H plus ions बन रहे हैं तो solution ज्यादा acidic की तरफ जा रहा है. तो cationic hydrolysis की वजह से H plus ions बढ़ जाते हैं. Anionic hydrolysis की वजह से OH minus ions solution में बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए हर आयन को ऑब्जर्व करना जरूरी है. Okay. Yes, any doubts so far? तो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन आपको आना चाहिए. कोई डाउट है तो बताओ. फाइन, अगर डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. अब हम लोग सॉल्ट्स के अंदर जा रहे हैं और एक एक टाइप ऑफ सॉल्ट को देखेंगे. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. कैटेगरी नंबर 1. कैटेगरी नंबर 1 क्या है? देखो, a salt which is formed by reaction between a strong acid and a strong base is called a neutral salt, and such a salt does not undergo hydrolysis. मतलब क्या? ऐसा सॉल्ट, इसके लिए मैंने शुरुआत में लेक्चर में बता दिया था कि सॉल्ट में से कैटायन बेस से आता है और एनायन एसिड से आता है. इसके लिए आपको ये नॉलेज चाहिए. A salt formed by reaction between a strong acid and a strong base is a neutral salt. Such a salt does not undergo hydrolysis. Examples of such salts, देखो, NaCl, KCl, KNO3, BaCl2, इनमें से कोई भी एक उठा लेते हैं और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं. कौन सा उठाना है चारों में से बताओ. इन चारों में से कौन सा आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए? कौन सा उठाना है? 4 में से कितने उठाने हैं? एक उठाते हैं, कोई भी एक उठा के देखते हैं कि उसका एनालिसिस क्या है. We will analyze only one particular NaCl. salt. सबको NaCl का एनालाइज करना है. ठीक है. NaCl. Cation is Na plus, anion is Cl minus. Cation coming from NaOH, anion coming from HCl. NaOH is a strong base. लिस्ट में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस में से. वैसे ही HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. कहने का मतलब क्या हुआ? एसिड भी पेरेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बेस भी पेरेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है. पेरेंट का मतलब क्या है? जिससे वो बना है. सो आई एम सेइंग NaOH इज द पेरेंट बेस फॉर NaCl एंड HCl इज द पेरेंट एसिड फॉर NaCl. सो पेरेंट बेस एंड पेरेंट एसिड का मतलब होता है कि जिन दोनों एसिड और बेस के रिएक्शन से वो बना है. ओके. NaOH is a strong base, HCl is a strong acid. यानी दोनों के दोनों पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग है. सो NaCl is not going to undergo hydrolysis. ठीक है. तो ऐसे बाकी जो आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं वो है KCl, KNO3, BaCl2. हर एक का आप एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कैटायन जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है और एनायन जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है. इस प्रकार के जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें कोई हाइड्रोलिसिस होता नहीं है. एंड दैट इज व्हाई वी कैन से the pH of any of these salts is exactly equal to 7 at 25 degrees Celsius. बस खत्म हो गया फर्स्ट कैटेगरी. सबसे आसान है फर्स्ट कैटेगरी बिकॉज इसमें कोई फार्मूला इन्वॉल्व नहीं है. हम लोग सीधा ये कह सकते हैं that the pH of any of these salts is going to be equal to 7. Why 7? Because it's absolutely neutral. It is not showing hydrolysis. And at 25 degrees Celsius, we see that neutral pH is nothing but 7. Okay. So first category done. Second category. A salt formed by reaction between a strong base and a weak acid is a basic salt. Such a salt undergoes anionic hydrolysis. ऐसा salt
जिसका कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा हो और एनायन वीक एसिड से आ रहा हो, हम लोग उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस दिखा सकते हैं। और किस टाइप का हाइड्रोलिसिस होता है? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ये होता है कैटेगरी 2। एग्जांपल्स ऑफ सच सॉल्ट्स आर, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सच सॉल्ट्स। चेक करो इनमें से कौन सा उठाना है, बताओ। एनालिसिस करते हैं इनमें से कोई एक का, कौन सा उठाना थर्ड है इनमें वाला, से? कौन सा? थर्ड 1 2 3 कैसियन। नहीं सॉरी, फोर्थ वाला ये अपना फोर्थ वाला, ओके। CH3C डबल। हाँ हाँ हाँ, फाइन। बेरियम एसिटेट, बेरियम इज Ba and CH3CO minus is called acetate। तो हम लोग उसको उठा लेते हैं। Let's analyze this। इसका कैटायन कौन होगा? Ba2+ Ba2+, and anion कौन होगा? CH3COO CH3C_OH-। Now the cation comes from a base, so इसका बेस कौन होगा? BaOH twice। इसका एसिड कौन सा होगा? बन गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस वी हैव फाउंड आउट। नाउ टेल मी, एसिड और बेस में से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है? बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है। Exactly, barium hydroxide is a strong base and CH3COH is a weak acid। Hence category 2, category 2 में वही है ना, any salt जिसका cation strong base से आ रहा हो और anion weak acid से आ रहा हो, such a salt undergoes anionic hydrolysis। अब इसका anionic hydrolysis करवाएंगे। So anionic hydrolysis क्या होगा? Anion will undergo reaction with water, right? Anion will undergo reaction with water। चलो रिएक्शन दिखाते हैं। ऐसा होगा CH3CO minus plus water। This is the reaction। Okay। सर ये हाँ कुछ नहीं, Anion plus water होगा, क्या बनेगा? CH3COOH plus OH minus। हो गया anionic hydrolysis का reaction। So it's a reversible reaction। Remember, any hydrolysis reaction is always a reversible reaction। So this is going to be the anionic hydrolysis of acetate ion। So CH3COO minus plus H2O giving CH3COOH plus OH minus, and it's a reversible reaction। So hydrolysis किसका हुआ? CH3COO minus का हुआ। इसके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं anionic hydrolysis। तो ऐसा सॉल्ट जिसका एनायन वीक एसिड से आ रहा हो और कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा हो, अंडरगोस एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। सो ऐसे सॉल्ट्स के आप बना सकते हो। ऐसा कोई भी सॉल्ट उठा के आप देख सकते हो कि उसका कैटायन कहाँ से आ रहा है और उसका एनायन कहाँ से आ रहा है। That is why you must know the list of strong acids, strong bases, weak acids and weak bases, which I had given to you in the first lecture। अब बारी आती है फॉर्मूले की। एसिड प्रकार के सॉल्ट जो होते हैं उनके लिए करना क्या है, कैसे पीएच फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या चीजें हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे देखिए रखा है, द फॉर्मूले व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर एनी सच सॉल्ट आर, फर्स्ट क्या है? KH, कैपिटल K and then a subscript small h, KH is equal to KW upon KA। KW तो सबको पता है 10 to the power of -14 होता है at 25 डिग्री सेल्सियस, KW का वैल्यू। And KH is equal to KW upon KA। What is KH and what is KA? That is what we have to see now। तो पहले देखो क्या होता है। KH का और एक फॉर्मूला भी है, CH² upon 1 minus H। उसको हमेशा हम लोग CH² ही ट्रीट करेंगे, यानी 1 minus H को अप्रोक्सीमेटली 1 लेके आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, and hence KH is equal to CH²। So you see some formula 1 2 3, 3 के 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं, तीनों के तीनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। Okay, okay। Now we will see what is the meaning of KH and what is the meaning of KA and what is the meaning of C। ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो KH, CH क्या क्या चीजें हैं? C का मतलब क्या है? C का मतलब है इनिशियल मोलारिटी ऑफ एनायन ऑफ सॉल्ट। ओके, अगर सॉल्ट हमारा फॉर एग्जांपल मानो यही है, इसी सॉल्ट को ले लेते हैं एग्जांपल। ओके, बेरियम एसिटेट का, चलो इसी का ले लेते हैं।
और अगर मैंने बोल दिया कि आई हैव 0.05 मोलर बेरियम एसीटेट, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन देख के रखा है आपको 0.05 मोलर। अगर 0.05 मोलर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है तो हमें C का वैल्यू कितना मिलेगा? व्हाट इज C? C इज द इनिशियल मोलारिटी ऑफ एनाइन ऑफ सॉल्ट, मतलब हमें सिर्फ एनाइन से मतलब है। तो पहले एनाइन क्या है यहाँ पे? CH3CO-। अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा कैटायन और एनाइन में तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। करेक्ट। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्ट का 0.05 मोलर बताया गया है क्वेश्चन में, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसीटेट आयन? 0.1 वेरी गुड। कैसे मिला? into 2 होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है, मतलब इसके जितने यूनिट्स को मैं डिसोसिएट करूंगा ट्वाइस मुझे मिल जाएंगे एसिडेट आयंस के कॉन्सेंट्रेशन। सो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हिच इज 0.1 is going to be the concentration of acetate ions, यानी C का वैल्यू यहाँ पे 0.1 होगा। ओके, तो इस केस में C का वैल्यू क्या होगा? 0.1। ठीक है, so C is called initial molarity of anion of salt। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल h इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कहां पे दिखा स्मॉल h? यहाँ पे दिखा ना स्मॉल h, CH²। दिस h is called degree of hydrolysis। Okay, next, what is Ka? Ka is the dissociation constant of the conjugate acid of the anion। एनाइन मानो आपका, जैसे इस केस में CH3CO- लिया था हमने, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? पहले इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लेंगे। conjugate acid of CH3COO- is this। conjugate acid of CH3COO- is this, right? conjugate acid का मतलब क्या होता है? मैं एक H प्लस ऐड करता हूं तो मुझे conjugate acid मिलता है। So CH3COOH is the conjugate acid of CH3COO-। So dissociation constant of the conjugate acid of the anion, यानी CH3COOH का dissociation constant जो होगा that is called Ka। तो इस फॉर्मूले में, इन तीनों के तीनों फॉर्मूले में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या मतलब है। ओके, Ka क्या है? dissociation constant of the conjugate acid of the anion of salt। पहले anion को आइडेंटिफाई करो, उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ और उस कॉन्जुगेट एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा that is called Ka। तो इस केस में वो CH3COOH का Ka होगा, क्योंकि CH3COOH is the conjugate acid of CH3COO-। अब मुझे बताओ, अगर सॉल्ट ऐसा होता, मानो हमारा सॉल्ट होता K3PO4, तो इसका भी वही केस है। पोटेशियम K प्लस कैटायन है और एनायन है आपका PO4 3-। K plus is coming from a strong base, that is KOH, and PO4- is coming from a weak acid, that is H3PO4, एक weak acid है। तो यहाँ तक पता चल गया कि जो कैटायन है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है और जो एनायन है वो वीक एसिड से आ रहा है, and hence we say that this salt is belonging to category 2। यही वाली कैटेगरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? सॉल्ट जिसका कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा हो और एनायन वीक एसिड से आ रहा है। हो गया यहाँ तक क्लियर? कैटेगरी 2 का सॉल्ट है K3PO4। फाइन, तो कैटेगरी 2 के लिए ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो Ka यूज करेंगे फॉर्मूला में, ये वाला जो आपको दिख रहा है Ka, तो ये K इस केस में किस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है?
यहाँ पे जो K यूज करेंगे फॉर्मूला में, that K is the dissociation constant of which acid if my salt is K3PO4? HPO4 2 minus. Yes, correct. anion कौन सा है? PO4 3 minus anion. अब इस anion का कॉन्जुगेट एसिड बनाओ पहले, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा HPO4 2 minus, यानी HPO4 2 minus का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो मुझे यूज करना है यहाँ पे और यहाँ पीके है ना, यहाँ पे पीके सर वो माइनस पी क्या है? पी मतलब माइनस लॉग ना, यू हैव डन दिस ऑलरेडी। सर उसका मतलब सिर्फ माइनस लॉग ही है ना, और कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, इस चैप्टर में इस पी का हमेशा मतलब माइनस लॉग ही रहने वाला है। अच्छा ओके सर। नथिंग एल्स। स्मॉल पी, हाँ, डोंट राइट कैपिटल पी, इट्स ऑलवेज स्मॉल पी, बट कैपिटल के होना चाहिए, के को स्मॉल मत लिख देना। तो कॉन्जुगेट एसिड PO4 3 माइनस का HPO4 2 माइनस है, तो HPO4 2 माइनस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो यूज करना पड़ेगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। अब HPO4 2 माइनस का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो ऐसा होगा, HPO4 2 माइनस का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो इस वाले रिएक्शन का डिसोसिएशन के लिए होगा, right? When HPO4 2 minus is undergoing dissociation, this is what I can write. तो इस वाले रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है that is called Ka of HPO4 2 minus. अब और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, इसको इनडायरेक्टली हम लोग और एक तरीके से बोल सकते हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि Ka of HPO4 2 minus is nothing but Ka3 of H3PO4. Can't I say this? Remember, हम लोग कर रहे थे सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स K1, K2, K3, जब एक एक स्टेप में डिसोसिएशन हो रहा था, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं H3PO4 को अपना एसिड मान लूं, तो फर्स्ट स्टेप में अगर मैं K1 की बात करूं सिर्फ, तो ये K1 कहलाएगा, इस स्टेप के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा वो K1 कहलाएगा, सो इसके लिए K1। सेकंड स्टेप क्या होगा, जब ये वापस डिसोसिएट करेगा, दिस विल गिव मी K2, करेक्ट, एंड थर्ड विल बी K3। कौन सा थर्ड है? ये वाला थर्ड है। सो अगर H3PO4 को मैं डिसोसिएट करूं स्टेप्स में, क्योंकि वो वीक एसिड है तो उसको मैं स्टेप्स में डिसोसिएट कर दूंगा, अगर स्टेप्स में डिसोसिएट करके मैं H3PO4 दिखाऊं, तो जो वन फर्स्ट स्टेप का आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड K1 ऑफ H3PO4। यहां से जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड Ka2 ऑफ H2PO4, Ka2 ऑफ H3PO4 और Ka ऑफ H2PO4 माइनस। इस स्टेप में जो आएगा थर्ड वाले में, इसमें अगेन से दैट इज Ka3 ऑफ H3PO4 और Ka ऑफ HPO4 2 माइनस, करेक्ट? इज इट क्लियर ये वाला पार्ट? एनी डाउट? करेक्ट। सो Ka of HPO4 2 minus is nothing but Ka3 of H3PO4। सर यस। सर आपने एक बार पहले बोला था ना कि अगर मतलब ऐसे जनरली अगर सॉल्ट पानी में जाएगा तो फिर पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना? नहीं, पानी का कभी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है ना, वाटर इज अ प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड इज इग्नोर्ड राइट इन आवर कैलकुलेशंस ऑफ केमिकल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम एंड किसका चेंज आयनिक। होता है? हाँ,
कॉन्सेंट्रेशन चेंज किसका होता है फिर? हर किसी का होगा, सिर्फ पानी का ही नहीं होता है ना। वाटर इज अ प्योर लिक्विड, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 55.55 मोलार ही रहने वाला है। So water is not taken into consideration for any reaction. कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो रहे हैं, वो बाकी सब तो आयंस के हो रहे हैं, एसिड्स के हो रहे हैं, बेसिस के हो रहे हैं। ओके, सो कोई भी अगर आप ऐसा एसिड लोगे जो स्टेप्स में डिसोसिएट करना है, तो आप K1, K2, K3 लिख सकते हो अगर 3 स्टेप्स है, राइट। तो अगर K3 of H3PO4 लिखूंगा मैं, तो दैट इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर स्टेप। बट ये इटसेल्फ अगर मैं HPO4 2- का K बोलूं, तो भी HPO4 2- का K तो यही होगा ना, बिकॉज HPO4 2- तो इसी स्टेप में डिसोसिएट हो रहा है। So it is nothing but I can say that K3 of H3PO4 is equal to Ka of HPO4 2-। और अगर इस स्टेप में बात करें सेकंड स्टेप के लिए, तो क्या बोलेंगे सेकंड स्टेप के लिए? सेकंड स्टेप के लिए बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेप के लिए क्या बोल सकते हैं? सेकंड स्टेप के लिए बोल सकते हैं इस वाले स्टेप के लिए Ka of H2PO4- is nothing but equal to Ka2 of H3PO4। ये बोल सकते हैं H2PO4- का Ka, मतलब इस वाले स्टेप की बात कर रहे हैं, is nothing but the second dissociation constant of H3PO4 ना, because H3PO4 तो ऑलरेडी पहले हो चुका है डिसोसिएट फर्स्ट स्टेप में, तो ये सेकंड स्टेप है। So I can say Ka of H2PO4- is equal to K2 of H3PO4। Similarly, Ka of HPO4 2- is equal to K3 of H3PO4, and so on. Correct? चलो इसके लिए कैसे बोलेंगे? H2CO3 is a weak acid. स्टेप वाइज डिसोसिएट करके करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में एक H+ निकालेंगे, so we will be left with this। so हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा? ये जो बना है ये वापस डिसोसिएट करेगा, so HCO3- will undergo dissociation to give H+ CO3 and CO3 2-। अब मैं बोल सकता हूं कि इस वाले स्टेप के लिए I can say that therefore Ka of HCO3- is nothing but Ka2 of H2CO3। Correct? तो अगर इसके हिसाब से बात करोगे तो सिर्फ Ka लिखोगे, बट अगर इसके हिसाब से बात करोगे तो आपको K2 लिखना पड़ेगा, वही मैं बोल रहा हूँ। Why Ka2? बिकॉज इसके हिसाब से ये सेकंड स्टेप है, so Ka2 of H2CO3 लिखना पड़ेगा। Okay. Okay, so we have done the second category of salts. And KH को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। KH कहाँ दिखा? यहाँ पे KH दिखा फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। किसके लिए? सेकंड कैटेगरी के लिए। सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्ट जिसका केटायन आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से और एनायन आ रहा है वीक एसिड से। थर्ड कैटेगरी की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी, a salt which is formed by reaction between a strong acid and a weak base। मतलब क्या हुआ इसका भी? ऐसा सॉल्ट जिसका केटायन आ रहा हो वीक बेस से और एनायन आ रहा हो स्ट्रॉन्ग एसिड से। Such a salt undergoes cationic hydrolysis। Examples, these are the examples of such salts। चेक करो ध्यान से। अगर मैं लेना चाहूंगा ये वाला एक सॉल्ट ले लेते हैं कोई भी में से, चलो ले लेते हैं NH4NO3 को। तो NH4NO3 को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा?
NH4NO3, NH4 plus NO3 minus. Cation is NH4 plus, anion is NO3 minus. Cation is coming from NH4OH, anion is coming from HNO3. तो मतलब anion आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, cation आ रहा है वीक बेस से. हो गया कैटेगरी 3. मतलब कैटेगरी 3 में क्या होता है, कैटेगरी 3 में सॉल्ट का जो कैटायन होता है वो वीक बेस से आ रहा होता है और जो सॉल्ट का एनायन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा होता है. सो दिस इज कैटेगरी 3. कैटेगरी 3 में क्या होता है, किसका हाइड्रोलाइसिस होता है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है. कैटायन कौन है, NH4 प्लस है, तो लिखो अभी NH4 प्लस का हाइड्रोलाइसिस. तो NH4 प्लस प्लस H2O गिविंग NH4OH प्लस H प्लस. ये हो जाएगा आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ NH4 प्लस. So this hydrolysis reaction is of NH4 plus. Okay. The formula to be used for any such salt are. आ गए वापस फॉर्मूले पे, वापस 3 फॉर्मूला आ जाएंगे यहाँ पे भी. KH is hydrolysis constant. Okay. Small h is degree of hydrolysis. And ये आएगा pH का फॉर्मूला. अब वापस देखते क्या होते हैं इन चीजों में. Again, C is initial molarity of, but now it is initial molarity of cation of salt. तो अभी मुझे बताओ, अगर मैंने ये सॉल्ट लिया NH4 twice SO4 और मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया 0.15 मोलर, then what is going to be the value of C in this particular formula? ये जो फॉर्मूला है दिख रहा है, इसके अंदर C का वैल्यू क्या डालना चाहिए अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये है तो. What is the value of C? Yes. क्या है C? देखो यहाँ पे लिखा है इनिशियल मोलरिटी ऑफ कैटायन ऑफ सॉल्ट 0.3. हाँ, तो यहाँ पे NH4 ट्वाइस SO4 हमारा सॉल्ट है, इसको डिसोसिएट करूंगा तो कैटायन आ जाएगा ऐसा 2NH4 प्लस और एनायन ऐसा आ जाएगा. यानी 1 कोएफिशिएंट इसका है और इसका कोएफिशिएंट कैटायन का 2 है. तो अगर 0.15 मोलर ये लिया सॉल्ट, देन concentration of NH4 plus will be 2 into 0.15, that is 0.3 मोलर. ये हो जाएगा C का वैल्यू. कौन से C का, यहाँ पे जो C डालते हो, यहाँ पे जो C डालते हो, यहाँ पे C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन ऑफ सॉल्ट. सिर्फ कैटायन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेना होता है. ओके. व्हाट इज Kb? यहाँ पे Kb क्या है देखते हैं. Kb is dissociation constant of conjugate base of the cation of salt. अब conjugate base of cation जो है उसका जो dissociation constant होगा वो Kb होगा. अगर हम लोगों ने salt लिया ये वाला NH4 twice SO4 तो उसका cation है NH4 plus. तो NH4 plus का जो conjugate base आएगा वो क्या आएगा, NH3. yes. For conjugate base I take out 1H plus, so इसका मुझे conjugate base will be NH3. तो NH3 का जो Kb आएगा वो हमारा यहाँ पे Kb है. KH is hydrolysis constant. ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका कैटेगरी 3. मतलब आपको बस कैटेगरी के हिसाब से फॉर्मूले लगाने हैं, दैट्स ऑल. ओके. लास्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स, ऐसा सॉल्ट जिसका कैटायन भी वीक बेस से आ रहा हो और एनायन भी वीक एसिड से आ रहा हो, मतलब दोनों के दोनों पेरेंट्स वीक है. उस केस में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी होता है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी होता है. Both types of hydrolysis will happen. तो यहाँ पे वही लिखा है the anion as well as the cation undergo hydrolysis. Examples क्या होंगे,
These are the examples of such salts. कौन सा उठाना है इनमें से बताओ एनालिसिस के लिए? CH3COONH4 उसको उठाना है. ओके, तो CH3COONH4 अगर उठाना है तो CH3COO minus is the anion and NH4 plus is the cation. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हाइड्रोलिसिस दोनों का ही होगा, CH3CO माइनस का भी होगा, NH4 प्लस का भी होगा. CH3 तो ऐसा हो जाएगा. फिर कैसा हो जाएगा रिएक्शन? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ. CH3COO minus plus NH4 plus H2O giving CH3COOH plus. So this is going to be the hydrolysis reaction for CH3COONH4. ये हो जाएगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ CH3COONH4. H2O के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों के दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, कैटायन भी और एनायन. फाइन. सो कैटायन और एनायन दोनों के दोनों क्या आएंगे? वीक बेस और वीक एसिड से रेस्पेक्टिवली आ रहे होंगे. इन केस में ऐसे इसमें फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं. द फॉर्मूला टू बी यूज्ड फॉर एनी सच सॉल्ट आर फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड. Again you can say H is called degree of hydrolysis, small h, right? Degree of hydrolysis बोलते हैं. यहाँ पे Ka और Kb क्या होंगे? जैसे इस केस में अगर देखेंगे तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी Ka, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी Kb. यानी वीक एसिड का Ka और वीक बेस का Kb. वापस वही है, Ka is the dissociation constant of conjugate acid of anion and Kb is the dissociation constant of conjugate base of cation. Okay, and Kh is called hydrolysis constant. अभी क्वेश्चंस देखते हैं. Okay, now this question is a derivation which is not required, so I'm not doing it. It is just meant for your knowledge. So if you want, you can go through it. If you don't want, you can leave it, because derivation is not required for exams. तो इसके लिए मैंने ये दे के रखा है, अगर किसी को चाहिए तो वो देख सकता है बाद में अपने नॉलेज के लिए, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, सो आई एम नॉट डूइंग इट. लीव इट. आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए. अब डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस में. फर्स्ट क्वेश्चन, write chemical equations representing hydrolysis of the following ions. हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस लिखने. चलो लिखते हैं. फर्स्ट क्या लिखेंगे? कैसा होगा बोलो? इसका रिएक्शन विद वाटर लिखना है, इसका रिएक्शन विद वाटर लिखना है, सो ऑन. हर आयन के लिए बोला है ना हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन लिखो, तो ऐसा हो जाएगा. तो हर आयन का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखने के लिए बोला है. ऑलराइट, बोलो मुझे फर्स्ट वाले का आंसर बताओ. CH3COOH plus OH minus. वेरी गुड. एनी डाउट? ऑलराइट, नेक्स्ट वाले का बताओ. HCl plus OH minus. थर्ड वाले का
NH3 plus NH4OH plus H plus. Okay, very good. Okay, फोर्थ वाले का सर उसमें 2 आएगा ना, Na प्लस प्लस 2H2 वो तो आएगा बाद ना? की बात है ना, वो हम उसको बोलना नहीं होता है, वो बाद में बैलेंस करना होता है। ओके, NaOH का होल 2 प्लस H प्लस। Okay, now in the beginning I had said something. अगर कैटेगरी 1 को आप देखोगे तो कैटेगरी 1 की ओर जाते हैं, सबको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। कैटेगरी 1 फर्स्ट कैटेगरी चेक करो, असॉल्ट, और मैंने एग्जांपल भी लिया था यहाँ पे NaCl का। असॉल्ट whose cation comes from strong base and also whose anion comes from strong acid does not undergo hydrolysis, ऐसा लिखा था। कहने का मतलब क्या है, अगर केटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तो वो केटायन हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा। लाइकवाइज अगर एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है तो वो एनायन भी हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा। So hydrolysis reaction is not possible for a cation which is coming from strong base. Similarly, hydrolysis reaction is not possible for an anion coming from a strong acid. तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर यही होगा कि कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा? Na plus is coming from NaOH. NaOH is a strong base. कोई भी केटायन जो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा होता है वो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, नहीं दिखाता है, एंड हेंस नो रिएक्शन। अच्छा, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ज्यादातर लोग इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसा NaOH plus H plus, ऐसा लिख देते हैं लोग। This is not possible. It doesn't occur. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी केटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं दिखाता है। सिमिलरली जो भी एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो बताओ फिफ्थ का क्या लिखूं? not possible. Yes. हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नहीं होगा वापस, because Br minus is coming from HBr. HBr is a very strong acid. You can check the list of strong acids and strong bases given to you. Okay. तो वही यहाँ पे यहाँ पे सोल्यूशन से क्वेश्चन। जल्दबाजी में गलती हो जाती है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट्स में। So be careful. Next question. What is the pH of 0.1 molar barium acetate solution pKa of acetic acid? Okay, fine. अब मुझे बताओ ये बेरियम एसिडेट तो एक सॉल्ट है, क्लियरली दिख रहा है सबको। अब मुझे बताओ ये सॉल्ट कौन सी कैटेगरी का है? हमेशा कैटेगरी वाइज जाना है। एनायनिक हाइड्रोलाइज। हाँ नहीं वैसे नहीं, वो तो वेरी आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम अक्रॉस विद दैट टर्म, बट टेल मी कि ये कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से? थर्ड है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। दैट्स सेकंड नॉट थर्ड। अच्छा हाँ सेकंड। सेकंड कैटेगरी। अगर सेकंड कैटेगरी है तो सेकंड कैटेगरी के फॉर्मूले लगाएंगे, सेकंड कैटेगरी के फॉर्मूले लगाएंगे। सेकंड कैटेगरी में क्या था कि फिर अंडरगो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, करेक्ट? तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब जो एनायन है वो CH3COO- है, वो हाइड्रोलिसिस दिखाएगा। ओके, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में C आता है, सबने देखा है, C नाम की एक चीज थी। व्हाट इज C? कंसंट्रेशन ऑफ द एनायन ऑफ सॉल्ट। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट गिवन? 0.1 मोल। लेकिन ये तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन देके रखा है, हमें मतलब CH3COO- की कंसंट्रेशन से है। हेंस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कंसंट्रेशन ऑफ ओनली CH3COO-। कैसे निकालेंगे वो? 2 into 0.1। वेरी गुड, 2 into 0.1 हो जाएगा।
तो इस तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग, इसका कोएफिशिएंट 1, तो इसका कोएफिशिएंट 2, hence concentration of acetate ions is going to be 2 into 0.1 which is 0.2 molar. अब आ गया फार्मूला के में, सीधा फार्मूला लगा दो, 7 plus half pK plus half log C, वो फार्मूला जो दिया था मैंने pH का, एंड वहां पे C का वैल्यू 0.2 डालना है, pK एक क्वेश्चन में दे के रखा है, यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी, ये कट जाएगा 2 से, 2.37 हो जाएगा, log 0.2 को लिख सकते हैं हम लोग log 2/10, log 2/10 क्या मिलना है, log 2 minus log 10 because log a by b is log a minus log b. log 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, log 10 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, डाल दो, log 2 is 0.3, log 10 is 1, 0.3 minus 1 is minus 0.7, सॉल्व करने से आ गया 9.02 आंसर आ गया। Yes, any doubt? सीधा सीधा एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला है, बस यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि हमें C क्या डालना है, C इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, तो 0.2 डालना पड़ेगा ना कि 0.1। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में 0.1 डाल देते हैं, बट 0.1 क्या है, 0.1 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, इट इज नॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनायन, वी आर कंसर्न्ड विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनायन, दैट मींस वी आर कंसर्न्ड विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO-। तो हमें CH3CO- का निकालना पड़ेगा पहले, इसके लिए ये वाला डिसोसिएशन करके दिखाया गया है कि देखो कैसे CH3CO- आ रहा है, कहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बेरियम एसीटेट से आ रहा है। बेरियम एसीटेट का अगर एक यूनिट डिसोसिएट करता है तो हमें 2 यूनिट्स ऑफ एसीटेट आयंस मिलते हैं, तो अगर 0.1 मोलर बेरियम एसीटेट डिसोसिएट करेगा तो 2 into 0.1 मोलर यानी 0.2 मोलर ऑफ एसीटेट आयंस आएंगे। तो इसके लिए C का वैल्यू पहले निकाल लो, कभी भी अगर सॉल्ट का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो C का वैल्यू पहले निकाल लो, जैसे मैंने निकाल लिया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, नथिंग एल्स। हाँ, पर आपको कैटेगरी के हिसाब से फार्मूला लगाना है। चलो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4Cl is a salt again. Tell me which category does it belong to? चार में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? थर्ड कैटेगरी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। wrong. NH4 plus is a cation, Cn minus is the anion of NH4Cl. NH4 plus आ रहा है NH4OH से, Cn minus आ रहा है HCN से, ये एक वीक बेस है, HCN एक वीक एसिड है, यानी दोनों के दोनों पेरेंट्स वीक है। ओके, HCN is a weak acid, it's given to you in the list already. तो NH4OH वीक बेस है, HCN वीक एसिड है। अब बताओ कैटेगरी कौन सी है? फोर्थ। करेक्ट। फोर्थ कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी, फोर्थ कैटेगरी में क्या था, दोनों के दोनों वीक। एनी डाउट एनीबॉडी हैज? आई विल शो अगेन, चेक करते इसमें। देखो फोर्थ कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स, आ गया ना फोर्थ कैटेगरी, देखो क्या है फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी में क्लियरली दिख रहा है, ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से बना हो वो फोर्थ कैटेगरी में लाया करता है। एग्जांपल्स में देखो है आपके पास NH4Cn, CH3CO, NH4, HCOO, NH4। फॉर्मूला आ गया, ये वाले फॉर्मूले हैं KH, राइट, लगा देंगे फॉर्मूले। करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। ओके, तो KH का फॉर्मूला ये होता है फॉर द फोर्थ कैटेगरी, लगा दिया। क्वेश्चन में K देके रखा है, क्वेश्चन में K भी देके रखा है,
इसको आगे सॉल्व करोगे तो KH इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और KH का दूसरा वाला फॉर्मूला ये होता है, वो वहां पे वो भी देके रखा था मैंने, H upon 1 minus H whole square. You have got already the value of KH from this. Put the value of KH here. तो यहाँ से H आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे तो, और हमें परसेंटेज निकालने बोला है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय H करना पड़ेगा, because percentage hydrolysis is 100 multiplied by H. What is H? H is degree of hydrolysis. Then what is 100H? Percentage hydrolysis. Okay, any doubt? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका कोई यूज नहीं हुआ, दिस इज ऑफ नो यूज। क्यों ऐसा? क्योंकि फॉर्मूला के अंदर है ही नहीं ना कहीं पे सी का कोई टर्म इस फोर्थ वाले कैटेगरी के लिए, तो दिस इज ऑफ नो यूज। हमें सीधा सीधा फॉर्मूले के हिसाब से जाना है सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल जेईई मेन क्वेश्चन। फॉर्मूला लगाना है बाद में, लेकिन पहले देखना है क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले H2SO4 और BaOH ट्वाइस के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, H2SO4 और BaOH ट्वाइस के बीच में रिएक्शन हो रहा है। कैसे पता चला रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में देख के रखा है कि 10 ml of 0.2 molar H2SO4 is mixed with 20 ml of 0.2 molar BaOH twice. Remember one thing, मैं ये चीज अभी बोल रहा हूँ, बाद में भी ये आपको काम आएगा। जब भी एसिड और बेस एक ही साथ प्रेजेंट हो तो हमेशा रिएक्शन होगा। तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि हाँ रिएक्शन लिखो या रिएक्शन करके दो। It's by default understood that if an acid and a base are mixed, reaction is bound to happen. What is the reaction? It's called neutralization reaction, wherein the acid reacts with the base to form salt and water. ये कोई बोलने वाला नहीं है, ये आपके दिमाग में हमेशा फिट रहना चाहिए कि अगर कोई एसिड और बेस हमें दिख रहे हैं एक ही साथ एक ही सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैंने एक एसिड और एक बेस को मिक्स किया है तो हमेशा मुझे उसके बीच का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। उन दोनों के बीच में जो भी रिएक्शन हो रहा है वो लिखना जरूरी है, वो कोई बोल के क्वेश्चन में नहीं देगा, चाहे वो ये चैप्टर हो या कोई भी दूसरा चैप्टर। एसिड और बेस एक साथ आ गए मतलब रिएक्शन लिखना कंपलसरी है, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे उस क्वेश्चन में। सो एसिड कौन सा है? H2SO4। बेस कौन सा है? BOH ट्वाइस। तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर। कैसे लिखेंगे रिएक्शन? अगर मानो ये बेस है और ये एसिड है, मोल कंसेप्ट को वापस जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर। बैलेंस करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। राइट, अब एक एक चीज के मोल्स निकालने पड़ेंगे। अगर रिएक्शन लिख रहे हैं तो मोल्स में काम करना जरूरी है। 10 ml of 0.2 molar H2SO4 मतलब मोल्स निकाल सकते हैं। मोलारिटी देके रखा है, वॉल्यूम देके रखा है। मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स इज मोल्स। इसके भी मोल्स निकाल सकते हैं। सेम थिंग, मोलारिटी इनटू लीटर्स। सो मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय लीटर्स इज मोल्स। तो पहले देखो लिखा है यहाँ पे मैंने भी, लेकिन मैंने अगर वॉल्यूम को ml में ही रखा तो मुझे क्या मिलते हैं? मिलीमोल्स मिलते हैं। तो मोलारिटी इनटू लीटर्स अगर करूं तो मिलेंगे मुझे मोल्स। लेकिन अगर मैं मोलारिटी को ml में ही मल्टीप्लाई कर दूं यानी मिलीलीटर्स, तो आई विल गेट मिलीमोल्स। प्लीज नोट द डिफरेंस प्रॉपर्ली। अगर मैं मोलारिटी को लीटर से मल्टीप्लाई करूं तो मोल्स मिलता है, अगर मोलारिटी को मैं मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करूं तो मिलीमोल्स मिलता है। ये कंसेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। वो लीटर्स और मिलीलीटर्स में जो आप यूज करोगे अकॉर्डिंगली आपका फाइनल भी यूनिट बदल जाएगा।
अगर लीटर्स यूज करोगे तो फाइनल यूनिट मोल्स आएगा, अगर मिलीलीटर्स यूज करोगे तो फाइनल यूनिट मिलीमोल्स आएगा। मिलीमोल्स को लिखने का तरीका ये होता है स्मॉल m एंड देन अगेन स्मॉल mon, दिस इज द नोटेशन फॉर मिलीमोल्स। तो देखते हैं क्या है। 10 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, 10 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 मतलब 0.2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 मिलीमोल्स आ जाएंगे H2SO4 के। 2 millimoles of H2SO4. How many millimoles of barium hydroxide are there? Again, you will multiply 0.2 and 20. 20 into 0.2 is 4. इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। Initially मतलब T is equal to 0. Initially I have 2 millimoles of sulfuric acid and 4 millimoles of barium hydroxide. Correct? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो कोएफिशिएंट 1:1 है, मतलब इसका जितना रिएक्ट करेगा इसका भी उतना ही रिएक्ट करेगा। तो इसके 2 मिलीमोल्स रिएक्ट कर जाएंगे तो इसके भी 2 मिलीमोल्स रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब अगर 2 millimoles of H2SO4 react, then 2 millimoles of BaOH twice will also react. Why so? Because coefficients दोनों का सेम है, तो ratio of coefficients is 1:1. तो अगर ratio of coefficients 1:1 है तो जितना इसका रिएक्ट होगा उतना ही दूसरे वाले का भी रिएक्ट होगा। कहने का क्या मतलब होगा कि 2 millimoles of barium hydroxide रिएक्ट हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 4 - 2 थे तो 4 ना, रिएक्ट हुए तो बच गए तो कितने बच गए? 2 millimoles of barium hydroxide are left behind. Any doubt so far? Great, fine. Now, यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन का पहला पार्ट देख लिया। अब क्या बोलता है वो देखते हैं। The solution obtained is filtered and the resultant solution is reacted with 20 ml of 0.2 molar CH3COOH solution. मतलब अब जो बच गया, जो भी अभी सोल्यूशन बच गया उसको मैंने वापस CH3COOH के साथ रिएक्ट करवाया। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट रिएक्शन, मतलब एंड में पीएच जब खत्म हो जाएगा सब कुछ तो पीएच क्या रहेगा। मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या मिला था? फर्स्ट पार्ट में हमें ये मिला था BaOH ट्वाइस के लेफ्ट ओवर मोल्स इतने, बेरियम सल्फेट के बने थे मोल्स इतने, और पानी के हमेशा पानी के बने थे इतने। अब पानी को हमेशा इग्नोर करना होता है पीएच कैलकुलेशंस में बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल, सो फॉरगेट दैट। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या बोला है कि अभी हम लोग CH3COOH से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो बच गया था ना बेरियम हाइड्रोक्साइड, वो तो एक बेस है ना, अगर तुम एसिड डालोगे फिर से तो एसिड के साथ रिएक्ट तो करेगा बेस। सो CH3COOH जब आप डालोगे तो ये लेफ्ट ओवर BaOH ट्वाइस विल रिएक्ट एंड सो आई कैन राइट दिस रिएक्शन नाउ। कितने मोल्स बेरियम हाइड्रोक्साइड के थे बचे? 2 मिलीमोल्स। तो 2 मिलीमोल्स मैंने लिखे हैं इसके लिए, इसके अंदर इसके पीछे। और एसिडिक एसिड के कितने मोल्स डाले गए हैं चेक करते हैं। 20 ml of 0.2 molar CH3COOH। 20 ml of 0.2 molar मतलब क्या? 20 multiplied by 0.2 which is 4 millimoles। बिकॉज ml में है वॉल्यूम तो मिलीमोल्स में आंसर आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने कि एसिडिक एसिड के 4 मिलीमोल्स है और बेरियम हाइड्रोक्साइड के 2 मिलीमोल्स है। वापस रिएक्शन लिखना जरूरी है, तो रिएक्शन को लिखा है और लिख के रिएक्शन को बैलेंस भी करना कंपलसरी है, वरना आंसर्स आपको सही नहीं आएंगे। सो आई हैव बैलेंस्ड द इक्वेशन जस्ट लाइक वी यूज्ड टू बैलेंस इक्वेशंस इन 9th and 10th स्टैंडर्ड्स। एनी डाउट? फाइन। सर एक कोएफिशिएंट्स दिखाओ ना। हाँ हाँ एक बार क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो वापस दिखाओ ना। हाँ हाँ ये है सेकंड पार्ट। यहाँ से सर रिजल्टेंट सॉल्यूशन बोला है, मतलब प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा ना? नहीं, रिजल्ट का मतलब जो भी चीज है सब कुछ है ना इसके अंदर। ये रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद तो BaOH ट्वाइस भी बच गया ना।
और ये तो कुछ रिएक्ट करेगा नहीं ना, क्योंकि वो न्यूट्रल है। हाँ वो न्यूट्रल है, मतलब कैटेगरी नंबर 1 है, वो कैटेगरी नंबर 1 ऑफ सॉल्ट्स का है ये। तो कैटेगरी नंबर 1 होता है तो उसको भी इग्नोर करते हैं, वाटर को भी इग्नोर करते हैं, तो उन दोनों को भूल जाओ। बचे रहे सिर्फ ये BH ट्वाइस, कितने बच रहे 2 मिलीमोल्स, तो वही रिएक्ट करेगा सिर्फ एसिड के साथ। ओके सर, समझ अब गया। एसिड का और बेस के मोल्स हमारे पास है, तो हम लोग को ये निकालना है कि कौन कितना रिएक्ट करेगा। सो अगेन रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स देखेंगे, 2:1, 2:1 is the ratio of coefficients. हमेशा रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स से जाना है, 2:1 रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। अब रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या बोलता है हमें, व्हाई डू वी डू दिस? रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स हमें ये कहता है कि कितना रिएक्ट होने वाला है, किस रेशियो में रिएक्ट होने वाले हैं, मतलब 2:1 रेशियो में रिएक्ट होने वाले हैं। अगर 2:1 रेशियो में रिएक्ट होने वाले हैं, कैन आई से 4 will react with 2 completely, because 4:2 is nothing but 2:1. So 4 millimoles of acetic acid will react completely with 2 millimoles of barium hydroxide. Therefore कुछ भी बचेगा नहीं, ये भी 0, ये भी 0, because रेशियो तो 2:1 है, तो उसी रेशियो में रिएक्ट होना चाहिए। आपके पास क्या है, 4 और 2, तो 4:2:1, मतलब ये भी पूरा रिएक्ट हो जाएगा, ये भी पूरा रिएक्ट हो जाएगा। पूरा रिएक्ट हो जाने का मतलब कुछ बचेगा तो नहीं ना, इसके लिए 0 0। नाउ अगेन रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर देखेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 और इसका 1 सॉल्ट का 1:1 इज द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स, मतलब जितना बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा उतना ही बनना चाहिए CH3CO ट्वाइस भी। So 2 millimoles of barium hydroxide are reacting, which means 2 millimoles of CH3CO twice Ba must be formed, and 4 millimoles of water will be formed, because इसका 1 है बेरियम हाइड्रोक्साइड का कोएफिशिएंट और वाटर का कोएफिशिएंट 2 है। So 1:2 is the ratio of coefficients of BaOH twice and H2O. So BaOH twice and H2O का जो रेशियो है वो 1:2 है। इसका मतलब जितना BaOH twice रिएक्ट करेगा उसका ट्वाइस H2O बनेगा। BaOH twice रिएक्ट किया 2 मिलीमोल्स, तो H2O बन गए 4 मिलीमोल्स। इसके लिए H2O के नीचे 4 मिलीमोल्स लिखा है। अब सॉल्यूशन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। Now what do we have in our solution? 0 0 तो छोड़ दो, जो 0 है मतलब वो है नहीं, तो छोड़ दो, वो तो है ही नहीं ना। तो क्या है सॉल्यूशन के अंदर, जो 0 नहीं है वो ले, वो है। तो कौन है, एक तो CH3CO ट्वाइस Ba वो है, और एक है H2O। अब मैंने आपको बोला है कि pH निकालने के वक्त हमेशा वाटर को इग्नोर किया जाता है, so forget water, hence we are only concerned with this salt। तो इस सॉल्ट की वजह से जो pH होगा सिर्फ वही होगा हमारा pH, CH3CO ट्वाइस Ba। कैटेगरी नंबर 2 का है, तो अभी जाएंगे कैटेगरी नंबर 2 से। अब 2 मिलीमोल्स बने हैं सॉल्ट के, 2 मिलीमोल्स बने ना सॉल्ट के, तो फिर इस पर्टिकुलर एनान का क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स, 2 into 2, 4 मिलीमोल्स। yes or no, any doubt? बेरियम एसिडेट Yes, के sir. 2 मिलीमोल्स बने हैं, तो इस सिर्फ मैं एसिडेट आयन को देखूंगा तो 4 मिलीमोल्स है, बिकॉज़ इसका 1 मतलब इसका 2, तो 4 millimoles of barium, 4 millimoles of acetate ions are there, but हमें concentration चाहिए। What is concentration of acetate ions in this example, in this sum? Moles, that is 4 upon volume of solution ना, moles को volume से divide करना पड़ता है। moles को अगर आप ले रहे हो तो volume liters में होना चाहिए, तो ही moles per liter मिलता है, यानी concentration मिलता है। बट यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मिलीमोल्स, तो मिलीमोल्स ले लिया है, तो मैंने इसको मिलीलीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मोल्स ले रहा हूं तो लीटर से डिवाइड करते हैं ना, तो अगर मिलीमोल्स ले रहा हूं तो मिलीलीटर से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बोला है अगर आप 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हो तो टोटल वॉल्यूम लेना होता है। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम नाउ, इसका 10 ml, इसका 20 ml, मिला के 30 ml, और फिर उसको ऐड किया था 20 ml, 50 ml। Okay, remember this, when you are adding solutions, when you are mixing things, the total volume of the entire mixture is nothing but the sum of individual volumes of solutions mixed. 10 plus 20 is 30, 30 plus 20 is 50.
which means 50 ml is the total volume of the mixture now. So 4 upon 50 कर दूंगा. This is going to be the molarity of acetylens. यही चीज में लोगों को डाउट होता है सर. और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सी, कैपिटल सी. तो इसी जो आप फॉर्मूले में सी डालते हो सॉल्ट्स का, और सॉल्ट्स में से जो सी होता है वो तो ये होता है ना, concentration of the ion. In this case it's anion because the anion has undergone hydrolysis. हमारे पास एक बार जब सी आ जाता है तो हम लोग फटक से फॉर्मूला लगा देते हैं. लगा देंगे फॉर्मूला भी. तो यही यहाँ पे समझा है. सी का वैल्यू 0.08 मोल्स पर लीटर कैसे आया, 4/50 करके आया. 4/50 is 0.08. कैसे? Multiply both numerator and denominator by 2, you will get 8/100, which is 0.08. So 4/50 is simply nothing but 0.08. अब pH का फॉर्मूला लगाएंगे जो देके रखा है आपको. pH is equal to 7 plus half pK plus half log C. pK क्वेश्चन में देके रखा है तो सीधा ऐसा हो जाएगा. C is 0.08, 8/100, so log 8 minus log 100 हो जाएगा. And 8 is nothing but 2 cube, so I can write log 8 as 3 log 2. log 2 का वैल्यू सबके पास होता है, 0.3 होता है log 2 का वैल्यू, डाल देंगे वो. सर बाय 100 भी है ना? हाँ हाँ नहीं बाय 100 भी है ना? हाँ, तो log 8 माइनस log 100 किया ना इसके लिए. अरे हाँ. And log 100 is nothing but 2. कैसे? हाँ, 100 2 बाहर is आएगा 10 और 10 square, प्लस. so 2 log 10. log 10 is 1, so log 100 is 2. डाल दो वैल्यू, फाइनली तो आ जाएगा 8.82. सो बेसिकली सॉल्ट की कैटेगरी को देख के फॉर्मूला लगाना है. और हाँ, सबसे पहले सी निकाल लो. किसी भी सॉल्ट के लिए पहले सी निकाल लो. व्हाट इज सी? सी इज गोइंग टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ द एनायन ऑफ सॉल्ट if the salt is belonging to second category. Otherwise, C is going to be the concentration of the cation of the salt if the salt is belonging to the third category. ये हो जाएगा pH का ultimate calculation, which is 0.8.82. Fine. Next question. K3PO4, ये एग्जांपल मैंने लिया भी था समझाते वक्त तभी. K3PO4 कौन सी कैटेगरी का सॉल्ट है? First category, strong acid and strong base. No, wrong. H3PO4 is a weak acid. So, which category will it belong to? तो second category. Second category. Second category. क्योंकि K plus cation होगा जो कि KOH से आ रहा है. KOH is a strong base and PO4 3 minus is the anion जो कि H3PO4 से आ रहा है. H3PO4 is a weak acid. H3PO4 is a weak acid. So category number 2 हो गया salts का. Category 2 मतलब क्या? ऐसा salt जिसका cation आ रहा है strong base से और anion आ रहा है weak acid से. Fine? Okay. तो जो भी salt का concentration होगा वही होना चाहिए concentration of PO4 3 minus भी. क्यों ऐसा? Because इसका भी 1, यहाँ पे भी 1. तो 0.1 मोलर जो देके रखा है ना K3PO4 का, that is nothing but going to be exactly equal to the concentration of PO4 3 minus also, which means concentration of PO4 3 minus is also 0.1 molar because coefficients का ratio 1:1 है. Okay,
तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा ना, सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। और फिर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो ये वाला फार्मूला पीएच का होता है। अब के क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बोला था, in second category of salts, when we apply the formula, then we say that Ka is nothing but the dissociation constant of conjugate acid of the anion. Anion कौन था यहाँ पे, PO4 3 minus, PO4 3 minus, तो PO4 3 minus का conjugate acid कौन होगा, PO4 3 minus का conjugate acid is, we will add just one proton, HPO4 2 minus, यानी HPO4 2 minus का मुझे ये चाहिए Ka, वही लिखा है यहाँ पे। Therefore, Ka will be the dissociation constant of HPO4 2 minus. But I have told you, Ka of HPO4 2 minus is nothing but Ka3 of H3PO4. Ka of HPO4 2 minus is nothing but Ka3 of क्वेश्चन में डायरेक्टली देके रखा है वैल्यू, Ka3 of H3PO4 का वैल्यू देके रखा है, तो मतलब हमें डायरेक्टली गिवन है Ka of HPO4 2 minus. So Ka of HPO4 2 minus is given to you 1.5 into 10 raised to minus 5. निकाल लो Pk माइनस लॉग करके, ये हो जाएगा 1.5 can be written as 3/2. So log 3/2, which is nothing but log 3 minus log 2. तो वही डाला यहाँ पे, इसमें क्या डालोगे आप, 12 माइनस log 3/2 is log 3 minus log 2. इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कैसे निकाला, log AB ना, so log AB is log A plus log B, which means this will be equal to minus log 1.5 minus log 10 raised to minus 12, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, and ये minus 12 को I can write here, so minus minus will become plus, so plus 12 लिख दे इसलिए, so plus 12 minus log 1.5. तो हमें pKa आ गया 11.82. Now I can substitute all the values in the formula. सेकंड कैटेगरी का जो pH का फॉर्मूला है वो ये है, pK अभी निकाल लिया ना 11.82, तो वो डाल दिया इसके लिए। C क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेटाइंस, यहाँ पे है C, 0.1 molar is K3PO4 का concentration. Also that is going to be the concentration of PO4 3 minus. So concentration of PO4 3 minus is nothing but C, that is 0.1. So on solving this further, final answer is 12.41.
Next question. Calculate pH at the equivalence point when 100 ml of 0.2 molar NH4OH is added to 100 ml of. Okay. सबसे पहले इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग भूल जाते हैं हमेशा इसको। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है देयर इज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, दैट मींस नो रिएक्टेंट शुड बी लेफ्ट अनरिएक्टेंट। क्या मतलब है इसका? नो reactant should be left unreacted, मतलब सब कुछ रिएक्ट हो जाना चाहिए, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। So at equivalence point, no reactant should be left behind. तो देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। अब 100 ml of 0.2 molar NH4OH. NH4OH is a base. HNO3 is an acid. मैंने कहा था ना जब भी एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो रिएक्शन लिखना जरूरी है, तो रिएक्शन लिखा है मैंने, तो ऐसा हो जाएगा 100 into 0.2 will be 20 millimoles of NH4OH. Similarly, यहाँ पे भी 100 into 0.2 will be 20 millimoles of HNO3 solution. That is 20 millimoles of HNO3 भी है, 20 millimoles of NH4OH भी है, जिसके T is equal to 0 पे लिख दिया 20 millimoles of NH4OH, 20 millimoles of HNO3. Right? रिएक्शन बैलेंस्ड ऑलरेडी, देख लो सब बैलेंस्ड है, तो 1:1 मतलब 20:20 is also 1:1, मतलब कुछ भी बचेगा नहीं, पूरा रिएक्ट हो जाएगा। दैट मींस आई कैन से 0 moles of NH4OH will be left behind and 0 moles of HNO3 will be left behind. So can I say this is nothing but this is corresponding to equivalence point? हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट, यही ना, ना ही ये है ना ही ये है, दोनों ही 0-0 है, दोनों ही 0-0 है, मतलब क्या हुआ इक्विवेलेंस पॉइंट। तो क्या है सोल्यूशन में हमारे इक्विवेलेंस पॉइंट पे? सिर्फ ये और H2O, only two things are there, salt and water, this and this, hence it is called equivalence point. So at equivalence point only salt and water are present, no acid is left behind, no base is left behind. ओके तो सोल्यूशन में फिलहाल सॉल्ट है NH4NO3, तो पीएच जो होगा वो सॉल्ट की वजह से होगा। NH4NO3 कौन सी कैटेगरी का सॉल्ट है NH4NO3? Which category of salts does NH4NO3 belong to? Category 3. Exactly. Strong. Because yeah, Strong acid and weak base. Strong acid and weak base. So category 3. Category 3. So category 3 अगर है तो उसके हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं C is nothing but NH4 plus का concentration. So NH4NO3 कितना है हमारे पास? 20 millimoles. तो C का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? millimoles of NH4 plus upon total volume. 20 millimoles है NH4NO3 के, तो 20 millimoles रहेंगे NH4 plus के भी, because इसका 1:1 है. So NH4 plus के millimoles कितने रहेंगे? इसके भी 20. बट हमें C चाहिए, C के लिए मिलीमोल्स को टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर से डिवाइड करना पड़ता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इसका भी 100 ml था, इसका भी 100 ml था, टोटल वॉल्यूम में भी 200 ml,
So I'll divide this by 200. I'll get concentration of NH4 plus ions. 20 upon 200 is 0.1. So 0.1 is the concentration of NH4 plus ions. C आ गया हमारे पास. अब सीधा हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं pH का. ये था फॉर्मूला. C आ गया ना हमारे पास, तो लगा देंगे. क्वेश्चन में pK भी देके रखा है. So put the value, you get the final pH. Because pH के लिए फॉर्मूला तो सॉल्ट का ही ना, सॉल्ट की कैटेगरी को देख के pH का फॉर्मूला लगाना होता है. ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर थर्ड कैटेगरी. C अभी निकाला. व्हाट इज C? दिस इज C. Concentration of NH4 plus ions coming from NH4NO3, that is C. डाल दो C का वैल्यू 0.1. आ गया या तो फिर फॉर्मूला में डालें तो ये आ जाएगा. So final value of pH is 5.13. Tell me if you have any doubt. Yes. Check the full question once and then tell me if you have. जब भी एसिड और बेस ऐड करते हो ना, तो रिएक्शन पहले लिखो एसिड और बेस के बीच का. ये बेस है, ये एसिड है, दोनों के बीच का रिएक्शन लिख डाला है मैंने कभी. एंड व्हाइल यू फाइंड आउट C, हमेशा याद रखो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना होगा मोल्स को. टोटल वॉल्यूम मतलब एसिड का भी जो वॉल्यूम लिया था, बेस का भी जो वॉल्यूम लिया था, दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड करके. सो 100 ml plus 100 ml is 200 ml, and that 200 ml is the total volume of the mixture. एंड इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ सॉल्ट और वाटर रहेंगे, एसिड और बेस कोई अनरिएक्टेड नहीं रहेगा. सो एसिड भी 0, बेस भी 0, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गिवन टू यू? Yes, what are the things which are given? Dissociation constant. किसका? Weak acid का HX. Okay, fine. और molarity given है. किसका मोलारिटी गिवन है? SRX2. मतलब क्या है वो? Salt. Salt, yes. SRX2 is a salt. Now, my next question is, what is the cation of the salt? What is the cation of the salt? SR2 plus. Exactly. SR2 plus is a cation because strontium belongs to group 2 of periodic table. So SR2 plus is a cation. ग्रुप 2 का जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब +2 वाले कैटायंस फॉर्म करते हैं, और ग्रुप 1 के जो होते हैं मेटल्स वो +1 वाले कैटायंस को फॉर्म करते हैं. ओके, व्हाट इज द एनायन ऑफ दिस सॉल्ट? X minus. X minus is the anion. Correct. So SR2 plus is coming from which base? SROH whole twice. Very good. X minus is coming from which acid? HX. Very good. HX and SROH twice are the parents of this SRX2. Now SROH twice is a strong base or a weak base?
Strong base. एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बिकॉज ग्रुप 2 को ये करता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस. HX is a weak acid or a strong acid. कैसे पता करेंगे ये Weak. चीज? कैसे Weak पता acid चला? क्वेश्चन में दिया है. ओके, क्वेश्चन में अगर ये वर्ड नहीं दिया रहता तो क्या करते हैं? ऐसा अगर बोला था क्वेश्चन में, मानो एन एसिड HX, अब क्या करते हैं? तो भी समझ में आना चाहिए. कैसे समझ में आएंगे? यस, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वीक एसिड, कि HX वीक एसिड है? An acid HX has dissociation constant. This is the hint. Dissociation constant तो strong acids के लिए होता ही नहीं है. Dissociation constant का जो concept है, that is applicable only for weak acids, right? जो Ka लिखते हैं हम लोग, this Ka is only for a weak acid. ये मैंने उसमें बता दिया था जब मैंने Ka के बारे में समझा था lecture 2 में. Right? हाँ सर. So dissociation constant of base बोला तो भी base weak है. Dissociation constant of acid बोला तो भी मतलब acid weak ही है. तो एसिड या बेस अगर वीक होता है तो ही डिसोसिएशन कांस्टेंट का कांसेप्ट आता है, वरना वो कांसेप्ट आता ही नहीं इस चैप्टर में. बिकॉज इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डीलिंग विद स्ट्रांग एसिड्स एंड स्ट्रांग बेसेस, हम लोग सीधा सीधा कंप्लीट डिसोसिएट कर रहे थे उसको, और फिर हम लोग बोल रहे थे कि इसके कितने H+ आए हैं, इसका अगर 0.2 मोलर है तो इसका भी H+ 0.2 मोलर होगा, एंड देन सीधा सीधा बोल रहे थे pH is minus log of 0.2. ऐसा कर रहे थे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई K का कांसेप्ट नहीं आता है. करेक्ट. तो उसमें लेक्चर 2 का इसके लिए वो देख लो एक बार पीडीएफ. ओके, कमिंग बैक टू द सम. सो HX इज अ वीक एसिड. फाइन. सो सॉल्ट की कैटेगरी कौन सी है? सेकंड कैटेगरी. वेरी गुड. SrX2 बन गया सेकंड कैटेगरी. इसलिए सेकंड कैटेगरी क्योंकि उसका जो एनायन है वो वीक एसिड से आ रहा है और कैटायन जो है वो स्ट्रांग बेस से आ रहा है. इसके लिए पहले ही मैंने कैटायन और एनायन लिख दिया. हो गया, अब पता चल गया. तो लेट्स गो अहेड. SrX2 will hence undergo anionic hydrolysis because कैटेगरी 2 का है. अब ऐसे कर सकते हैं हम लोग. एनायन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही C होता है ना कैटेगरी नंबर 2 में. तो C will be 2 into 0.05. Why 2 into 0.05? क्वेश्चन में जो 0.05 देके रखा है वो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है. सॉल्ट कौन सा है? SrX2. अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है तो X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी 2 into 0.05. Why? Because of this particular reaction which I have shown. डिसोसिएशन इस तरीके से होगा. यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है. Hence I can say कि SrX2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.05 देके रखा है क्वेश्चन में. And hence I will say that the concentration of X minus ions will be 2 into 0.05, which is 0.1. अब सीधा सीधा ये कर सकते हैं. फॉर्मूला लगा रहे हैं बस, और क्या. कैटेगरी नंबर 2 की CH² is equal to KH is equal to KW upon K. आपके पास सब कुछ है H के सिवा. अब H का वैल्यू आ जाएगा. आ गया H का वैल्यू. परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस पूछा है क्वेश्चन में. परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस 100 मल्टीप्लाइड बाय H. व्हाट इज H? हाइड्रोलाइसिस का डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. So what is percentage hydrolysis? 100 multiplied by H. यही पूछा था क्वेश्चन में ना. क्वेश्चन में pH पूछा नहीं था, इसके लिए नहीं निकाला मैंने pH. क्वेश्चन में क्या पूछा था देखो. Find out the percentage hydrolysis of this salt. जिसका concentration 0.05 होना है. तो एक बार H निकल जाएगा तो ही आप परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस निकाल सकते हो ना. इसके लिए H निकालने के लिए मैंने लगा लिया ये पूरा. बिकॉज फॉर्मूला वाज दिस. CH² is equal to KH. Also KH is equal to KW upon KA. ऐसे दो फॉर्मूले थे.
तो इसके लिए दोनों को इक्वेट कर दिया, ये भी KH है, ये भी KH है, तो दिस इज सेम एज दिस, दैट मींस फाइन. ओके, लास्ट पार्ट, एम्फीब्रोटिक स्पीशीज. अब एम्फीब्रोटिक स्पीशीज का ऐसा मतलब होता है जो H+ दे भी सकता है और जो H+ ले भी सकता है. या तो वो H+ दे सकता है या फिर मतलब दोनों ही कर सकता है, H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है. So any species which can donate one H+ ion and can also accept one H+ ion is called amphiprotic species. Examples देखो amphiprotic species के, SH minus, HPO4 minus, HCO3 minus. अब देखो कैसे ये amphiprotic बन गए. देखो SH minus ये ले भी सकता है, अगर लिया एक H+ तो ये बन जाएगा, और अगर दिया एक H+ तो ये बन जाएगा. करेक्ट. वैसे ही HCO3 माइनस, अगर इसने लिया, लेने के बाद बन जाएगा H2CO3, और अगर इसने H+ एक दिया तो देने के बाद बन जाएगा CO3 माइनस. तो मतलब ये जितने भी स्पीशीज है ये सब दे भी सकते हैं H+, ले भी सकते हैं H+, तो एम्फीब्रोटिक स्पीशीज कहलाते हैं. अगर आपको कोई भी ऐसा सॉल्ट मिला जहां पे एम्फीब्रोटिक स्पीशीज हो, फॉर एग्जांपल NaHCO3, अगर मैंने बोल दिया NaHCO3 का pH निकालो, तो उसके लिए तो आपको पता नहीं है कि क्या करना है, बिकॉज वो अभी तक किया नहीं है मैंने, तो इसके लिए मैंने अभी बताया. तो अगर एम्फीब्रोटिक स्पीशीज दिख रहा है ना, काइंडली डू नॉट गो फॉर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4. डोंट लुक एट द कैटेगरीज इफ यू ऑलरेडी हैव कम अक्रॉस एन एम्फीब्रोटिक स्पीशीज. तो इसके लिए पहचानना जरूरी है कि एम्फीब्रोटिक स्पीशीज कौन कौन से हैं. तो ऐसे कुछ सॉल्ट्स होते हैं जहां पे एम्फीब्रोटिक स्पीशीज होते हैं, जैसे देखो NaHCO3 हुआ, MgHCO3 ट्वाइस हुआ, कुछ भी ऐसा हो गया जहां पे एम्फीब्रोटिक आयंस दिख रहे हैं, तो वो हो जाएगा सीधा सीधा स्पीशीज एम्फीब्रोटिक. व्हाट अबाउट दिस वन KSH, इवन दिस विल बी एम्फीब्रोटिक बिकॉज़ SH है ना. ओके, देन व्हाट अबाउट दिस NaH2PO4, ये भी एम्फीब्रोटिक है बिकॉज़ H2PO4 माइनस जो है वो एम्फीब्रोटिक है. कैसे देखो, H2PO4 माइनस, अगर इसने एक H+ ले लिया तो बन जाएगा H3PO4, और अगर इसने एक H+ दे दिया तो बन जाएगा HPO4 माइनस. मतलब ये हो जाएगा एम्फीब्रोटिक, दे भी सकता है H+, ले भी सकता है H+. तो ऐसा कोई सॉल्ट दिख गया NaH2PO4, मतलब ये एम्फीब्रोटिक स्पीशीज के लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सीधा सीधा, आपको याद कर लेना है बस फॉर्मूले. If there is a salt containing containing HCO3 minus like NaHCO3 और MgHCO3 twice, कोई भी ऐसा सॉल्ट, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करना होता है. क्या फार्मूला होता है? pH is equal to half of pKa1 plus pKa2. P मतलब minus log. Okay, now what is Ka1 here? Ka1 is the first dissociation constant of H2CO3 and Ka2 is the second dissociation constant of H2CO3. Derivations are not required, that's why straight away I'm giving you the formula. वैसे ही अगर ऐसा कोई सॉल्ट आया जहाँ पे HS माइनस है, HS माइनस मतलब कैसा सॉल्ट रहेगा, मानो NaSH, KSH, ऐसे टाइप के सॉल्ट्स अगर दिख गए तो इसके लिए ऐसा फार्मूला, वापस फार्मूला वही है, हाफ ऑफ pKa1 प्लस pKa2. What is Ka1? It is the first dissociation constant of H2S. And what is Ka2? Second dissociation constant of H2S. क्वेश्चन में दिया रहेगा Ka1 और Ka2. सिमिलरली ऐसा कोई सॉल्ट जैसा मानो NaH2PO4 या फिर CaH2PO4 ट्वाइस, मतलब जब भी H2PO4 दिख गया तो समझ जाना कि एम्फीब्रोटिक स्पीशीज का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. Again, this is going to be the formula, half of pKa1 plus pKa2.
अब ये क्या है pK1 और pK2 यहाँ पे वापस वही है K1 is the first dissociation constant of H3PO4 and K2 is the second dissociation constant of H3PO4. एंड अगर ऐसा कोई सॉल्ट आ गया जहाँ पे HPO4 2 माइनस का प्रेजेंस दिख रहा है जैसे Na2HPO4 MgHPO4 K2HPO4 BaHPO4 दिख गया HPO4 सब में जब भी HPO4 दिख गया तो क्या करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हाँ, अभी फार्मूला थोड़ा चेंज हो चुका है now it is half of pK2 plus pK3 and what is K2 in this case K2 is second dissociation constant of H3PO4 तो यहाँ पे pK1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सीधा हम लोग pK2 से चालू करेंगे so second dissociation constant of H3PO4 is K2 and third dissociation constant of H3PO4 is K3 क्वेश्चन में वैल्यूज देके रखेंगे आपको K1 K2 और K3 के किसके कौन सा एसिड के लिए H3PO4 अब एक क्वेश्चन तो क्लियर हो जाता ये क्वेश्चन है calculate the pH of 0.01 molar NaHCO3 solution K1 of H2CO3 is given K2 of H2CO3 is also given देख क्या NaHCO3 मतलब HCO3 माइनस आयन है तो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज लगा दो फार्मूला स्टेटा में तो पहले pK1 निकाल लेंगे व्हाट इज K1 गिवन टू यू एज K1 of H2CO3 is given as this हम लोग कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का जो पहला केस था उसका ये था ना पहला केस ये लगा रहे हैं तो ये है K1 और ये है K2 लगा दो फार्मूला में K1 दिया हुआ है तो pK1 निकाल लेंगे इस तरीके से yes solve this and tell me the value of pK1 क्या आ रहा है pK1 का वैल्यू कितना आ रहा है pK1 का वैल्यू 6.3 क्या आएगा 6.3 का हाँ अब pK2 निकालो K2 देके रखा है अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है 47 को मैं फैक्टर्स नहीं कर सकता हूँ मतलब 47 cannot be split further और simplified further that is why 47 के बदले में सीधा 48 ले लिया मैंने मतलब 4.7 के बदले में सीधा क्या लिया है 4.8 क्यों ऐसा किया है ऐसा इसलिए किया बिकॉज 4.7 का एग्जैक्ट लॉग मैं नहीं निकाल सकता क्यों नहीं निकाल सकता बिकॉज 4.7 को मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता कि 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग और 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा अगर कभी हुआ तो सीधा अप्रोक्सीमेशन से कर लो यानी 4.7 को सीधा 4.8 ले लो क्यों ऐसा ताकि 4.8 को तो मैं ये कर सकता हूँ ना 48 इज व्हाट 4 into 3
which is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब जिस चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है उस चीज को उसके अगले वाले वैल्यू या पिछले वाले वैल्यू में राउंड ऑफ कर लो ताकि हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकें, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन के बिना हम लोग लॉग नहीं निकाल सकते। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग। तो सीधा 4.7 को 4.8 लेके आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। मतलब कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा हो जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है और लॉग हमें निकालना है तो उस केस में हम लोग उसको इमीडिएटली नेक्स्ट वैल्यू में या उसके पिछले वैल्यू में राउंड ऑफ कर देंगे। तो 47 को 46 में भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया उसका भी एक रीजन है। 46 is 2 into 23. Again, this 23 cannot be split further. 23 cannot be factorized. तो इसके लिए मैंने ये नहीं दिया, तो 48 ले लिया इसके लिए, ताकि 48 के हमें सारे फैक्टर्स 2, 3 और 5 के टर्म्स में मिल जाते हैं। बिकॉज हमारे पास log 23 का वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास log 2, log 3, log 5, log 7 के वैल्यूज होते हैं। मतलब हमें मैंने आपको दिए हैं याद करने के लिए। तो log 2, log 3, log 5 और log 7 अगर आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे ऐसे। तो इसके लिए 46 नहीं लिया है मैंने, 48 तक मैंने उसको राउंड ऑफ किया है। And now this can be factorized. 48 is 16 multiplied by 3. 16 is 4 square. 4 is 2 square. So ऐसे कर सकते हैं। So log 16 is nothing but 4 log 2, because 16 is 2 raised to 4. log 2 हमारे पास होता है 0.3, so 4 into 0.3 इस तरीके से होता है। pk2 का वैल्यू आ गया, वैल्यू इज 10.33। pk2 का वैल्यू कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 10.33। Now we can find out this pH formula है half of pk1 plus pk2। pk1 पहले निकाल लिया था, pk2 भी निकाल लिया, हो गया pH पे। Point to be noted, whenever you are dealing with any salt containing amphiprotic species, तो उसके concentration का कोई significance नहीं होता है। So this is of no use. This is of no use. तो घबराना नहीं है उसको देख के, वो वैसे भी कोई यूज का नहीं। मतलब क्या, हमने उसको यूज किया ही नहीं है कहीं पे ना। Have we used concentration anywhere? 0.01 anywhere? No. तो कोई भी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का रोल नहीं है। सीधा वो जो फॉर्मूले ऊपर दे के रखे हैं हाफ ऑफ pk1 प्लस pk2 वाले, वो वाले यूज करने हैं, बस खत्म। You don't have to rack your brains thinking about how to use the concentration of that species. Concentration का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है एम्फीप्रोटिक स्पीशीज के केस में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। So concentration has got nothing to do here. सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हाफ ऑफ pk1 प्लस pk2, या जो भी आप कर रहे हो हाफ ऑफ pk2। हर जगह हाफ ऑफ pk1 प्लस pk2 ही रहेगा, बस जब आपको HPO4 2 माइनस दिख रहा है ऐसा दिखेगा, जहां जहां HPO4 है उस केस में बस ये फॉर्मूला बदल जाता है और हो जाता है हाफ ऑफ pka2 प्लस pka3, जहाँ पे Ka2 और Ka3 सेकंड और थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं किसके, H3BO4 के। बस इसी केस में वो pk2 प्लस pk3 है, बाकी जितने भी फॉर्मूला देखो वो pk1 प्लस pk2 ही है। Only in this formula where HPO4 2 minus is involved, we have to use half of pk2 plus pk3, और ये K2 और K3 H3PO4 के है सेकंड और थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। Remember that H3PO4 is a weak acid. Okay, thank you.